Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So it's high time to prepare for GATE 2025 because as you already know we have just 162 days left for GATE CSIT. So 162 days में आपकी क्या strategy होनी चाहिए so that you can cover entire syllabus for GATE 2025 and also you have time for test series, revision, everything. मतलब कुछ भी मिस ना हो, प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से हो और अच्छी से अच्छी रैंक आ सके, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अभी होनी चाहिए तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर इस स्ट्रैटेजी को कवर करने के लिए आपको आज से ही मतलब अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो वी हैव 162 डेज, लेट्स डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। 148 डेज फॉर द सिलेबस कंप्लीशन एंड 12 डेज और 16 डेज फॉर 14 days we have left for test series. yes, तो 148 डेज़ को 4 सेट्स में डिवाइड करो, 37 डेज़ ईच, और 37 डेज़ में आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। 3 सब्जेक्ट्स, 2 लाइव और 1 रिकॉर्डेड। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के करते हो तो इस तरीके से, नहीं तो आप अपने तरीके से 3 सब्जेक्ट्स आपको एट अ टाइम 37 डेज़ में कवर करना है। पहला सेट आपका होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और एल्गोरिदम। कंप्यूटर नेटवर्क एंड एल्गोरिदम अभी मेरा लाइव भी चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, तो यू कैन ज्वाइन माई दिस कोर्सेज एंड दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू। ओके, और रिकॉर्डेड इसके साथ आप देख सकते हो जनरल एप्टीट्यूड को। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करो तो यू कैन जस्ट लर्न दीज 3 सब्जेक्ट्स, पर कंप्यूटर नेटवर्क फॉर श्योर, जनरल एप्टीट्यूड फॉर श्योर। यू कैन रिप्लेस एल्गोरिदम विद अदर सब्जेक्ट, but don't replace these remaining 2 subjects, that is computer network and general aptitude, because general aptitude carries 15 marks weightage and computer network 10 marks. And if you are enrolling Unacademy subscription, you will be able to complete these 3 subjects within 37 days very easily. Now let's come to the next 37 days set. The second set will contain 2 live subjects and again 1 recorded. The next 2 live subjects will be COA and operating system. Again operating system carry 9 marks weightage, and along with these 2 subjects you can watch engineering mathematics recorded. So my next live courses after algorithm and computer network will be COA and operating system, and then after that the third set in which we will cover these 2 subjects live. So in the third set we will be discussing compiler design and DBMS. Yes, compiler design and DBMS will be live, and along with this you can watch recorded. Which subject you can watch recorded? Yes, C programming and data structure. So with these 2 subjects, compiler and DBMS, you can watch the recorded C programming and data structure, and in the fourth set you can watch live discrete mathematics and digital logic, and along with this you can watch recorded theory of computation. So in this way you will be able to cover all the syllabus. Now how you will cover the syllabus, which is what is the correct way to cover the syllabus? Just covering the concept, just covering few PYQs, that's it? No. Whatever you are studying daily, just revise it daily 2 times. Also Monday to Friday, only Monday to Friday read the new stuff. Saturday Sunday focus on weekly revision, focus on last 20 years GATE PYQ, focus on more practice, and focus on topic wise test series. If you have completed a very important topic, like let's suppose you have completed a topic greedy algorithms in algorithm subject, then please give at least 2 topic wise test series in Saturday Sunday. So you will focus on new concepts Monday to Friday, but in Saturday Sunday you need to digest it, what you have learned in Monday to Friday, because many of the students just learn new and they don't retain it. It's very wrong. So आपको retain भी करना होगा, because you have not enough time कि आप पूरा पढ़ोगे और फिर बाद में लास्ट में एकदम अच्छे से रिवाइज करोगे, तब आपको बिल्कुल सब कुछ न्यू जैसा लगेगा. सो डोंट डू दिस थिंग. इवन गेट 2026 के जो लर्नर्स है वो भी ये गलत करेंगे. अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग इट फ्रिक्वेंटली, then at some point of time you will be able to you will not be able to recall the things that you have completed earlier.
तो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप मंडे टू फ्राइडे सिर्फ न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो भी आप न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका डेली प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, डेली 2 बार रिवाइज करेंगे, और आप जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एजुकेटर आपको शेयर करे, जैसे इन माय केस जो भी मैं कोर्सेज लाइव लेकर के आती हूँ उसके बाद में उसकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देती हूँ अपने ग्रुप पे। तो वही क्लास के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, डेली प्रॉपर नोट्स, डेली रिवाइज 2 टाइम्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और डेली लाइव अटेंड करना है, डेली नया नया कंसेप्ट पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है, जस्ट डिवाइड द टाइम वट एवर यू सूट्स यू, कि आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम तो लेना ही पड़ेगा ना। तो सुबह, दोपहर, शाम का ले सकते हो, सुबह, दोपहर, रात का ले सकते हो, या सुबह, शाम, रात का ले सकते हो, सुबह, दोपहर, रात का ले सकते हो, जो भी लेना है लो, बट यू हैव लेस टाइम। ओके, जो करना है आपको ये करना है, इतने ही टाइम में करना है। कैसे करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, और अदरवाइज यू विल हैव टू लेफ्ट सम सब्जेक्ट्स, देयर इज़ नो डाउट। ऑलरेडी यू आर लेट, बट स्टिल वी हैव सम स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो ना। सैटरडे संडे अगर आपका मंडे टू फ्राइडे कोई पेंडिंग काम है, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए उस दिन के, या रिवाइज नहीं किया उस दिन का, या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम उस दिन का नहीं किया, तो वो पेंडिंग काम करने के लिए भी सैटरडे संडे होगा, और प्रॉपर नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने का टाइम भी सैटरडे संडे का टाइम होता है। तो प्रॉपर नोट्स, लेट सपोज आपने 5 दिन में 100 पेजेस का प्रॉपर नोट्स बनाया, उसको आप 20 पेजेस के शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेज, उससे ज़्यादा नहीं। फिर शॉर्ट नोट्स किस नाम के, है ना। तो ये काम करना है। सैटरडे संडे प्रॉपर नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। सैटरडे संडे लास्ट 20 ईयर्स के गेट PYQ को सॉल्व करना है, उस टॉपिक के जो आपने मंडे टू फ्राइडे ख़त्म किया है। सैटरडे संडे आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। सैटरडे संडे आपको वीकली रिवीजन करना है जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा। सैटरडे संडे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ देनी है, या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ देनी है अगर वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक के लिए टेस्ट सीरीज़ मत देना। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ आप दो। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया उसको पकड़ करके भी तो रखना है ना। सो दैट इज़ वाई विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटजी 37 डेज़ में मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है नया, सैटरडे संडे नहीं पढ़ना है नया। ठीक है, अब आपको ये स्ट्रेटजी फुलफ़िल करते हो तो 148 डेज़ में आप सिर्फ चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, आप चीज़ों को रिवाइज़ भी कर चुके होंगे, आप चीज़ों को 1000 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, रिवाइज़ कर चुके होंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, लास्ट 20 ईयर्स के गेट PYQ सॉल्व कर चुके होंगे, बहुत सारे टॉपिक के टेस्ट लगा चुके होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट के टेस्ट लगा चुके होंगे। तो 148 डेज़ में आपने बहुत कुछ कर लिया है। सो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको फिर बचा क्या? एग्ज़ाम की फीलिंग लेना बच गया है। यानी जो लास्ट के 14 डेज़ होंगे, 148 डेज़ ख़त्म, 162 डेज़ में 14 दिन बचे। उन 14 डेज़ में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देनी है। 15 नहीं दे सकते, चलो 14 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 9 से 12 आप टेस्ट सीरीज़ दो, और शाम होते होते उसको पूरा अच्छे से पकड़ करके एनालाइज कर लो। अब एनालाइज कैसे करते हैं टेस्ट सीरीज़ को? तो जो भी क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसके एक्सप्लेनेशन को जा कर के भी रीड करना है कि क्या हो सकता था कि आपने जिस तरीके से सॉल्व किया उससे बेटर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया हो, जिससे कम टाइम में सॉल्व हो सकता हो। सो प्लीज़ डोंट ओनली फोकस ऑन रॉन्ग क्वेश्चंस, फोकस ऑन करेक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है उस क्वेश्चन को करेक्ट बनाने में आपने अपने 10 मिनट दे दिए हों और देयर इज़ सम अदर स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। तो यू शुड नो ना। तो ये चीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में जो सही है उसको भी देखना है, जो गलत है उसको तो 100% देखना है और उसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है। जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन किसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिलेटेड है, तो आपको उस कंसेप्ट की डिटेल्ड स्टडी करनी है कि वो गलत क्यों हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आपको पूरा टेस्ट सीरीज़ एनालाइज करना है। एंड अगर कोई भी डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, योर गोल्डन टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। प्लीज़ फिल्टर इट और उसको साइड में रखो और किसी एजुकेटर से पूछ लो, वो डाउट क्लियर कर लो। सो दैट्स इट। अब इस स्ट्रैटेजी को अगर आप मेरे साथ कवर करना चाहते हो, पूरे सिलेबस को सही तरीके से कवर करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस या आइकॉनिक, जिसमें आज सिर्फ
आज तक सिर्फ आपको 50% का ऑफ मिल पाएगा। यानी कि गेट 2025 के लर्नर्स संकल्प बैच 11 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मेरा कंप्यूटर नेटवर्क और एल्गोरिदम दोनों चल रहा है, उसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको क्लास के लिंक्स भी दे दूँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी आप कम से कम टाइम में प्रीवियस जो रिकॉर्डेड है एल्गो और कंप्यूटर नेटवर्क उसको जल्दी ख़त्म करके कल से मुझे लाइव कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं जल्द ही कुछ सेशंस लेने वाली हूँ जिससे कि कम टाइम में आपका पूरा काम होने वाला है एल्गोरिदम और कंप्यूटर नेटवर्क का पेड में। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट जल्दी आप ज्वाइन कर लें, बहुत लेट हो चुके हैं आप लोग। तो गेट 2025 के लिए संकल्प बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 6 मंथ का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 मंथ का जो प्लस है वो 8,500 का है और 6 मंथ का आइकॉनिक 14,500 का। कोई भी प्लान आप लें, प्लस में आपको सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, और आइकॉनिक में एक्स्ट्रा जो मिलता है वो होता है पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स। ओके, अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रेरणा बैच भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके लिए आप 2 साल का प्लस या 2 साल का आइकॉनिक ले सकते हैं। 2 साल का जो प्लस है वो 18,000 में है, 2 साल का आइकॉनिक 24,000 में है। पर लास्ट डेट आज है, प्लीज़ जल्दी से यूज़ करें रेफरल कोड HelloSonu01, जिससे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा और ये जो प्राइसेस मैंने बताई उस पर आप सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।